آج ہم آپ کو ایک انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے، ایک ایسی بکری کا جو کہ اذان دیا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام گاؤں والے حیران رہ گئے اور وہاں کا بادشاہ بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر بکری اذان کیسے دے سکتی ہے۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مصر کا ایک قاصد آیا اور اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، طوفانی بارشوں نے نہ صرف ہمارے گھر بلکہ مساجد کو بھی شہید کر دیا۔ لوگ کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ کتنے ہی لوگ سیلابی پانی میں بہہ گئے اور کتنے ہی لوگوں کی سال بھر کی کمائی اس سیلاب کی نظر ہو گئی۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ نے فیصلہ کیا نہ صرف وہ اس شہر کے لیے امداد بھیجے گا بلکہ خود بھی وہاں تشریف لے جائے گا۔ مگر جو اگلی بات قاصد نے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوا اور قاصد سے کہنے لگا، کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر قاصد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا کر عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا، اور یہ بات صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے مصر والے کہہ رہے ہیں۔ دور دور سے لوگ وہاں پر ماجرا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بکری عام بکری جیسی بالکل نہیں ہے، اور اذان کا وقت ہوتے ہی جو کچھ ہوتا ہے سبھی مسلمان رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر مزید حیران ہوا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب نہ دیکھ لیتے تب تک انہیں یقین کرنا مشکل تھا۔ لوگ اس کو معجزہ اور کرشمہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس بستی میں بارش سے اتنا سیلاب آیا کہ لوگوں کے مکان، جانور سب اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ لوگ روتے بلکتے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر عذاب نازل کیا ہے۔ یقیناً ہم سے کچھ تو ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آفت ہم پر نازل کی۔ اسی اسوان علاقے میں ایک چرواہا رہتا تھا جو کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ غریبی اس قدر تھی، اس کا مکان بھی ضائع ہو گیا اور اس کا مال بھی ضائع ہو گیا تھا۔ وہ چرواہا لوگوں سے کہنے لگا، ہم سے شاید کوئی گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم لوگ خرید و فروخت میں اور پیسے کی لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ چلو چلو مسجد میں چلو، اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے جو قریب کی مسجد میں پہنچے تاکہ وہاں پر نماز ادا کر سکیں، اپنے رب سے معافی تلافی کر سکیں۔ ابھی وہ لوگ مسجد میں ہی پہنچے تھے کہ ایک بار پھر تیز آندھی طوفان شروع ہو گیا اور مسجد کی چھت گرنے لگی۔ ہر سو کیچڑ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے رہے، لیکن باقی لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر مسجد کی چھت گر گئی تو ہم لوگ نیچے آ کر ہی مر جائیں گے۔ ڈر کے مارے وہ لوگ مسجد سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد مسجد بھی اس طوفان کی نظر ہو چکی تھی۔ مسجد شہید ہونے کی وجہ سے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا کہنا تھا قیامت آ گئی ہے۔ لوگ کھلے آسمان کے تلے آ چکے تھے۔ وہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی تھی، لیکن جب مغرب کا وقت آیا تو نہ مسجد بچی تھی اور نہ ہی مؤذن بچا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے رو رہے تھے۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی تھی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ ابھی بھی بارش تیز ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے گویا اذان سب لوگوں کے کانوں میں مزید رس گھول رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مسجد سے تو آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون تھا جو اذان دے رہا تھا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سب لوگ حیرت سے اٹھے اور اس جانب جانے لگے جہاں سے یہ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ جب ایک گھر کے باہر پہنچے تو انہیں آواز مزید بلند آنے لگی۔ شاید اس گھر میں ہی کوئی شخص موجود تھا جو اذان دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دھیرے سے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے جو منظر دیکھا اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچا مکان تھا اور وہ بکری بڑی ہی عجیب و غریب سی تھی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہو گئے، اس گھر کے مالک کو آواز دینے لگے، لیکن فی الحال کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ وہ لوگ دیکھنے لگے آخر اذان دے کون رہا ہے، لیکن آواز اسی بکری کے پاس سے آ رہی تھی۔ لوگ حیرت زدہ نظروں کے ساتھ اس بکری کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی اس بکری کو قریب سے دیکھا، جو کہ ایک اعلیٰ نسل کی دکھائی دیتی تھی، قد کاٹ میں انسان کے کندھے تک آ رہی تھی، لوگ اس کو آس پاس سے گھوم کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی چھو کر دیکھتا تو اندر سے آواز آئی، خبردار، اسے چھونے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ شخص جو اس بکری کو چھونے لگا فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سامنے کمرے میں سے ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ پھٹے پرانے کپڑے اس کے زیب تن تھے اور یہ بزرگ وہی چرواہا تھا جس کی بکریاں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی اور صرف ایک ہی بکری اس کے پاس بچی تھی۔ یہ بابا بہت سخت مزاج کا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس چرواہے سے کتراتے تھے اور دور ہی رہتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر مغرور آدمی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب سے اس شہر میں قحط سالی آئی تھی تو یہ چرواہا اس بستی سے ہی غائب ہو چکا تھا، اور گاؤں کے لوگ اکثر مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے کہ بوڑھا پتہ نہیں کیا قبر کی نظر ہو چکا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ لیکن اس شخص کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ہر کوئی اس بکری سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک شخص کہنے لگا، چاچا کیا یہ بکری تمہاری ہے؟
वो शख्स माथे पर बल डालकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ, जब मेरे घर की चार दीवारी में मौजूद है, मेरे ही घर में बंदी है, तो फिर मेरी ही हुई ना। वो शख्स उसके सख्त अल्फाज सुनकर पीछे हट गया। अब वो चरवाहा गुस्से से अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन अजान की आवाज उस बकरी के पास से यूं ही आ रही थी। उस वक्त सब लोग अजान के एहतराम में खामोश रहे, लेकिन बाद में फिर हैरान होकर पूछने लगे, ए चाचा, अजान की आवाज इसी घर में से आ रही है, क्या ये अजान आप दे रहे हो? आपके घर में कोई मुअज्जिन मौजूद है? तो उस चरवाहे ने बकरी की तरफ उंगली करके इशारा किया तो लोग बकरी की तरफ मतवज्जो हो गए। चरवाहे ने लोगों को बताया कि ये बकरी अजान दे रही है। ये बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और चरवाहे को बुरा भला कहने लगे। चचा, तुम सठिया गए हो, माना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? अब तो हद हो गई, हम तेरी शिकायत बादशाह को लगाएंगे कि तुम नाजेबा इल्जाम बकरी पर क्यों लगा रहे हो। उनकी ये बात सुनकर चरवाहा अपनी बकरी के नजदीक आया और कहने लगा, ये खुदा की मखलूक नहीं क्या? अल्लाह ताला ने इसको हलाल जानवर करार नहीं दिया? तुम इसका गोश्त नहीं खाते? और ये तो खुदा का बड़ा मौजज़ा है, मेरी बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने ख्वाब में ये मंजर देखा, लोग दूर दूर इलाकों से मेरी बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मेरी बकरी पर अल्लाह ताला की खास अता हो जाएगी और ये अजान देने लगेगी। जब इस इलाके में अल्लाह ताला की तरफ से ये आफतें आ चुकी हैं, मसाजिद गिर चुकी हैं, तो शायद अल्लाह ताला ने अपना कोई मौजज़ा दिखाना हो, इसीलिए इस बकरी की जुबान से अजान दिलवाई। फिर चरवाहे ने सब लोगों को बकरी से दूर होने का कह दिया। चरवाहा कहने लगा, कोई भी मेरी बकरी को हाथ न लगाए, बस दूर दूर से बकरी को देखे। आहिस्ता आहिस्ता ये बात दूर दूर के इलाकों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। इशा की अजान का वक्त हुआ तो एक मर्तबा फिर अजान की आवाज गूंजी। पूरे गांव में अजान की आवाज इसी घर से गूंज रही थी। वो बकरी ही अजान दे रही थी। जैसे जैसे अजान का वक्त करीब आता, वो बकरी किबला रुख की तरफ खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे अजान की आवाज इस बकरी के पेट से ही निकल रही हो। अब तो गांव से दूर दूर लोगों की ख्वाहिश थी हम इस बकरी को देखने जाएं। चरवाहे ने बकरी के इर्द गिर्द दायरा बना दिया था। बकरी को लोग दूर से ही देख सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। लोग जब इस बकरी की ज़ियारत करने के लिए आते तो हैरान हो जाते, एक बकरी भला अजान भी दे सकती है? ये बात किसी मौजज़े से कम नहीं थी। सबसे ज्यादा लोगों को ये बात मुतासिर कर रही थी, जब से इस बकरी ने अजान देनी शुरू की थी तब से बारिश भी दोबारा नहीं हुई थी। यानी कि बारिश थम चुकी थी और गली बाजारों का सारा पानी गायब हो चुका था। धीरे धीरे इलाके खुश्क होने लगे और जहाँ जहाँ इलाके का पानी खत्म हुआ वहाँ वहाँ खेतों में हरियाली आने लगी। जहाँ पर कहत साली थी वहाँ पर अनाज उगने लगा। हर कोई इस बकरी को बाबरकत कह रहा था। लोगों का कहना था जो कुछ भी हो रहा है बकरी की वजह से ही तो हो रहा है। लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने के लिए आने लगे। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह हैरान हो चुका था। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, एक बकरी इस कदर अल्लाह की इबादत कर रही है तो हम उस बकरी के मालिक से जरूर मिलेंगे जिसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया और उसको इनाम से नवाजेंगे। गांव के दूर से जो लोग इस बकरी को देखने आते थे काफी चढ़ावे भी लेकर आते थे। कुछ लोग तो मन्नतें मानने लगे थे। जो कोई कारोबार से परेशान होता वो कारोबार के लिए मन्नत मांगता, जो औलाद के लिए परेशान होता वो औलाद के लिए, यानी कि हर कोई अपना मसला लेकर उस बकरी से दुआएं करवाने लगा। बादशाह कहने लगा, ये बात तो हद से तजावुज कर गई। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को इस इलाके में भेजा और कहा, जल्दी से तुम सारा जायजा लेकर आओ। क्या हकीकत है ये बकरी अजान देती है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है? जब वजीर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया। जब हैरान होकर वापस लौट कर आए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे वजीर भी उस बकरी के गर्विदा हो चुके हैं। उन लोगों को अगर मजीद ढील दे दी तो ये इस बकरी को खुदा का शरीक ठहराएंगे। इतने में वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ जो बकरी का मौजज़ा बयान कर रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था। बादशाह ने उसे खामोश करवाया और कहा, हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन जो कुछ बादशाह के वजीर वहाँ पर अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे उस सब की वजह से बादशाह बहुत परेशान था। बादशाह ने फौरन सवारी तैयार करवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे लिए आम लिबास लाया जाए। मैं भेस बदल कर उस बस्ती में जाऊंगा और ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस शहर से तजारती काफिले भी गुजर रहे थे और जब इन लोगों को बकरी के बारे में पता लगता तो वापसी पर उस बकरी को देखे बिना वापस नहीं आते थे। बादशाह ने अपना भेस बिल्कुल मिस्र के ताजरों की तरह बनाया। अपने साथ एक ऊँट लिया जिस पर कुछ सामान लादा हुआ था। फिर मिस्र के बाजार में दाखिल हो गए जहाँ पर हर कोई इस बकरी की बातें कर रहा था। कह रहा था, हम तो नमाज ही तब पढ़ेंगे जब वो बकरी अजान देगी। इनमें से एक शख्स बोला, देखो बड़ी ही करामाती बकरी है। कल इस बकरी की अजान सुनकर हमने नमाज अदा की तो आज मेरी दुकान पर गाहक ही गाहक आए हैं। मैं मुनाफे में जा रहा हूँ। इस तरह की बातें बादशाह ने जब सुनी तो वो शदीद परेशान हुए। उनका दिल कांप कर रह गया कि सचमुच वो बकरी इतनी करामाती है। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका और उससे सवाल करने लगा, भाई मैं ईरान से यहाँ तिजारत के सिलसिले में आया हूँ, ये तुम लोग किस बकरी की बात कर रहे हो? जब उन लोगों ने बकरी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो फलां मोहल्ले में फलां जगह पर एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, तो बादशाह ने कहा, अब मैं भी उस घर में बकरी देखने जा रहा हूँ। जैसे ही बादशाह उस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग जोक दर जोक वहाँ आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं और इसी मोहल्ले में सब समा चुके हैं। बादशाह वहाँ पर आने वाले लोगों को देख रहा था जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और हैरान भी थे। जिस गली में उस शख्स का घर था वो बकरी उस घर में मौजूद थी। वो गली तो मुकम्मल तौर पर लोगों से भरी हुई थी और शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई फसाद हो गया हो। बादशाह ने इतने रश में सर उठाकर जब उस बकरी को देखना चाहा, उसकी जियारत करनी चाहिए, बादशाह भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। सहन के दरमियान में खड़ी हुई वो बकरी लोगों को हैरान कुन नजरों से देख रही थी। तब तक जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था। उन सब में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था, सबको घूर घूर कर देख रहा था। गुस्से से ये भी कहने लगा, ये मेरा घर है, कोई अजायब घर नहीं, और तुम लोगों ने मेरे घर और बकरी का तमाशा बना दिया। जाओ तुम लोग यहाँ से और मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। क्यों तुम इस बेजुबान जानवर को मजीद खौफजदा कर रहे हो? लेकिन उस बकरी को देखने के लिए लोग मजबूर होकर उस आदमी के हाथ पर पैसे रख रहे थे। कोई अशरफियों से भरी थैली उस शख्स के आगे रख रहा था, बस किसी तरह इस बकरी की जियारत कर सके। वो बूढ़ा शख्स मुंह में बड़बड़ा रहा था। जब जोहर की अजान का वक्त हो चुका तो अचानक फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो बकरी किबला रुख खड़ी हो चुकी थी और जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी तो उस बकरी का पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये अजान की आवाज उस बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही हो। जब तक बकरी अजान दे रही थी, बादशाह उस बकरी का जायजा लेता रहा और पास बैठे उस चरवाहे को भी गौर से देखता रहा कि कैसे मुमकिन है ये आवाज बकरी के पेट से निकल रही है। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग ये देखकर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दी और बकरी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोग अपने साथ बकरी के लिए उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां और चारा भी लेकर आ रहे थे। उसके लिए सोने और चांदी के बने हुए बर्तन लेकर आ रहे थे ताकि उस बकरी को इनमें चारा डालकर खिलाया जा सके। बहुत से लोग यहाँ पर आकर अजीब व गरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वो अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ ये कर रहे थे सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा शिर्क था और हकीकत से पर्दा तो अब बादशाह ही उठा सकते थे। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहाँ से चले गए तो वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि एक शख्स है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बादशाह उस घर में एक कोने में छुप कर बैठ गया था। जब उस घर में इक्का दुक्का ही लोग बचे थे तो वो बूढ़ा चरवाहा लाठी टेकता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह उस वक्त दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी। वो शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोली और देखा वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है और माथे पर बल डाले बादशाह को देख रहा है। वो शख्स इंतहाई सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा, ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं जो तुम यहाँ पर रुक चुके हो। जाओ अपने ठिकाने पर, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, यहीं पर रुके हुए हो। क्या कोई चोरी करने का इरादा रखते हो? बादशाह ने उस शख्स के अल्फाज सुने तो अगले ही पल अपने चेहरे पर शफकत भरे अल्फाज लाया और उठकर कपड़े झाड़कर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। यही वजह है मैं अभी तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ और इस इंतजार में हूँ कि कब लोग जाएंगे तो मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूंगा। बादशाह ने ऐसा कहा। वो बुजुर्ग शख्स सर से लेकर पैर तक बादशाह को घूरने लगा। कहने लगा, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? बादशाह कहने लगा, बस हुजूर, ये लोग यहाँ से चले जाएं तो मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहूँगा। इशा का वक्त गुजर चुका था। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। कहने लगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये सुनकर बादशाह ने जो बात की उस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ चुका था। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा, तू उठकर यहाँ से चला जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में मेहमान हो। बादशाह अगले ही पल कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। बादशाह इस मर्तबा अपने पास मौजूद एक ठेले से 3 पोटलियां निकालकर उस बुजुर्ग के सामने रख चुके थे। उनमें सोने की अशरफियां मौजूद थी। बादशाह कहने लगा, ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशरफियों से भरी 3 पोटलियां दूंगा। ये सुनकर वो शख्स भरम हो चुका था। कहने लगा, ये मेरी बकरी है, मैं किसी तौर पर इसे नहीं बेचूंगा। मगर बादशाह कहने लगा, देखो तुम्हारा घर कच्चा है, दीवारें भी निकम्मी हैं, चंद रोज तो लोग तुम्हारी इस बकरी का एहतराम करेंगे, लेकिन फिर एक रोज कोई न कोई चोर डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस बकरी को चुरा कर ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही है, ये ले लो और इस बकरी को मेरे हवाले कर दो। मगर वो शख्स किसी तौर न माना और धक्के मारकर बादशाह को अपने घर से निकाल दिया। उसे इल्म हो जाता कि इस वक्त कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह उसके सामने मौजूद है तो वो कभी भी इस तरह की गुस्ताखी न करता। कुछ वक्त के लिए तो बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। वो तो समझ रहा था ये शख्स लालची है और लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है ताकि लोग इसके यहाँ आएं और बकरी के नाम पर जो नजराना देकर जाएं उससे ये अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन सोने की अशरफियां देखकर भी वो शख्स नहीं माना था। लेकिन चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सोच में पड़ गया और कुछ वक्त वहाँ ही गुजारा। एक मर्तबा फिर वहाँ पर लोगों का हजूम बन गया था। आस पास के घरों से पूछा गया, ये शख्स क्या घर में अकेला रहता है या इसके घर में कोई और भी मौजूद है? इस बात पर एक शख्स ने बताया, ये बूढ़ा शख्स बेऔलाद है और अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहता है और पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा।
हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकल कर घर से जाती है, क्योंकि मैं देर तक बाजार में दुकान खोले रखता हूँ, इसलिए मैं इसे जाता हुआ देखता हूँ। और फिर सुबह फजर के वक्त वापस आ जाती है, वरना दिन की रोशनी में उसकी बीवी पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। हर वक्त पर्दे में रहती है। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शायद अब राज खुलने में ज्यादा देर नहीं बची थी। बादशाह ने गौर किया, ये शख्स इंतहाई उकताया हुआ है, बात बात पर लोगों से लड़ता झगड़ता है और बड़ी मुश्किल से जब्त करके बकरी की रखवाली के लिए बैठा होता है। और इस कदर चकन्ना होता है कि कहीं कोई बकरी के पास ना आ जाए। अगर कोई बकरी को हाथ भी लगाना चाहे, वो अपने पास मौजूद डंडा उसके हाथ पर मार देता। अलबत्ता बकरी की आजान सुनकर लोग मुतासिर हो रहे थे और तरह तरह के शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। कोई उस बकरी के पास आकर दुआ मांग रहा था और यही कह रहा था, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ाती बकरी है और यकीनन अल्लाह ताला के बहुत करीब होगी। अगर हम यहाँ पर रहकर अपनी दुआएं मांगे तो हमारी दुआएं सीधी हमारे रब तक पहुँचेंगी और जल्द अज जल्द कबूल भी हो जाएंगी। यूं इन अल्फाज से कई अल्फाज जन्म लेने लगे और लोग वो कुछ करने लगे थे जो कि दीन में शामिल ही नहीं था। बादशाह अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अगर वो लोगों के सामने बगैर सबूत कोई बात करेगा तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा बादशाह पर ही लोग ताने कसने लगेंगे और उनके खिलाफ ही मैदान में खड़े हो जाएंगे। चांद की आखिरी तारीख आने में एक रोज ही बाकी था। बादशाह इसी इंतजार में था, आखिर देखे तो सही, अगर ये शख्स इन सब में मुलविस नहीं है तो यकीनन इसकी बीवी ही कुछ ऐसा कर रही होगी जिसकी वजह से इस बकरी के पेट से आजान की आवाज आती है। हो न हो कुछ तो इन सब के पीछे जरूर छुपा है। महीने का आखिरी दिन आया तो रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह भेस बदल कर यूं ही चुप कर मौजूद थे। जब उस घर का दरवाजा खुला और औरत घर से बाहर निकल कर आई, बादशाह फासले पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। वो औरत तेज तेज कदम उठाती गलियों से चलती हुई जिस मकाम पर पहुंची थी, देखकर बादशाह के होश उड़ गए। उनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। कितनी ही देर खड़े होकर वो ये मंजर देख रहे थे और फिर वो औरत वापस घर आ गई। बादशाह सलामत शदीद परेशान हो चुके थे। जैसे ही वो औरत घर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई तो बादशाह भी चुपके से दीवार फैलाकर उस घर में दाखिल हो गए। जब कमरे से कान लगाकर सुना तो अंदर से ये बातें जो सुनी जा सकती थी वो ये थी, वो औरत शोहर से कह रही थी कि ये लोग खुदा के नाम पर कैसा कारोबार कर रहे थे। उनके लिए तो बस सजाए मौत ही बादशाह के पास थी। बादशाह ने उनके अल्फाज को अपने जहन में बिठा लिया था, फिर जल्दी इस घर से बाहर निकल आए। बहरहाल बादशाह के लिए ये मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका था। वो अकेले इस मामले को निपटा नहीं सकते थे, इसलिए वापस अपने महल में गए और अपने साथ वजीरों और सिपाहियों को भी लिया और तमाम तर मामला गोश गुजार करने के बाद कहा, इस मामले में मुझे तुम सब का साथ चाहिए। अगर हम सब मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे तो लोगों के सामने हकीकत आ सकती है, वरना यूं ही लोग गुनाहों का शिकार होते रहेंगे और हकीकत से अनजान रहेंगे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में अभी 3 दिन गुजारे और फिर पूरे मंसूबे के तहत वापस असवान के लिए रवाना हो गए। इस मर्तबा जब वो अपने सिपाहियों और वजीर के साथ भेस बदल कर इस इलाके में दाखिल हुए तो ये देखकर उन्हें हैरत हुई कि आज वहाँ पर रश मौजूद ही नहीं था। पहले जब वो वहाँ पर आए थे तो लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी। लोग घर में दाखिल हो रहे थे और इस बकरी के लिए चीजें भी ला रहे थे, लेकिन आज तो ये गली पूरी सुनसान पड़ी थी। बादशाह ने ये देखा तो परेशान से हो गए। जहन में ये ख्याल आने लगा कि कहीं इस शख्स ने इस बकरी को बेच तो नहीं दिया। बादशाह सोचते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से बुजुर्ग शख्स की आवाज आई। कहने लगा, कौन है और किस लिए आया है? उसकी गरजदार आवाज सुनकर वजीर के माथे पर बल पड़ गए। ये कैसा शख्स है जो इस कदर बदतमीजी से बात कर रहा है? लेकिन बादशाह ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और फिर कहने लगा, मैं आपके यहाँ बकरी देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है ये बकरी करामाती है। वो शख्स अगले ही पल गुस्से से कहने लगा, बस बस, मैंने अपनी बकरी की मशहूरी करना बंद कर दी है। मेरी बकरी अब मंजर आम पर नहीं आएगी। ये हामिला हो चुकी है और मैं हामिला बकरी किसी को दिखाकर नजर नहीं लगवाना चाहता। बादशाह ये बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो चुका था। वजीर और सिपाही ने उस बुजुर्ग की बकरी को देखना चाहा तो वो शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को बकरी नहीं देखने दूंगा। बादशाह भी तो अब नया मंसूबा सोचने लगा, आखिर इस घर में दाखिल कैसे हुआ जाए, उस शख्स को कैसे लालच दी जाए जिससे ये शख्स हमें घर के अंदर दाखिल होने दे और इस बकरी को देखने दे। मगर इससे पहले एक नस्वानी आवाज घर से गूंजी। आवाज सुनकर बादशाह एक पल को रुक चुका था और शायद ये उस शख्स की बीवी की आवाज थी। आप लोग अंदर आ जाएं, बकरी को देख लीजिए, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बादशाह ये सुनकर हैरान था। दरवाजा खुला, बादशाह घर में दाखिल हुआ तो सामने लाठी पकड़कर वही शख्स खड़ा घूर घूर कर बादशाह और उनके साथ मौजूद लोगों को देख रहा था। जब उसकी बीवी एक जानिब को मुकम्मल पर्दे में खड़ी इशारा कर रही थी कि वो बकरी आप लोग देख लीजिए। बादशाह, सिपाही और वजीर सब उस बकरी के पास पहुंच चुके थे। वहाँ पर आज किसी तरह की हद नहीं बनाई गई थी, बल्कि बकरी यूं ही बंधी हुई थी और इस पर साया बनाया गया था। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े और उस बकरी को छूने लगे तो वो शख्स एक मर्तबा फिर बफर कर बोला कि मेरी बकरी को हाथ मत लगाना। लेकिन वो औरत इस मर्तबा भी अपने शोहर की बात को काट कर कहने लगी कि आप लोग बकरी को छू सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहमत नहीं। अपनी बीवी के बोलने पर वो शख्स एक मर्तबा फिर दिल मलाल हुआ। बादशाह बकरी के साथ साथ उन दोनों की आदात पर भी गौर कर रहे थे। बादशाह आगे बढ़े और बकरी के पास जाकर बैठ गए।
और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगे। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या होने वाला है। सभी राज खुल रहे थे। बादशाह सलामत ने वजीर को कहा, पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैला दो, ये बकरी हामिला है। जब लोग कहेंगे हमें पता है तो कहना बुजुर्ग कह रहे हैं, ये बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है जो पैदा होते ही बोलने लगेगा। वो बच्चा ही 5 वक्त की अजान देता था और वो बच्चा जब दुनिया में आ जाएगा, जो पहली मर्तबा पैदाइश के बाद उसे देखेगा वो माला माल हो जाएगा। सिपाही समझ नहीं पाए आखिर इसका मकसद क्या है, लेकिन जो कि बादशाह का हुक्म था इसलिए वो इनकार न कर सके और अगली सुबह बाजार गलियों कूचों में जाकर एक गिरोह की शक्ल में खड़े होकर बातें करने लगे। जैसे ही लोगों के कानों तक ये बात पहुंची, वो कहने लगे क्या माजरा है, और यूं सिपाही उन लोगों को बताने लगे कैसे वो बकरी एक इंसानी बच्चा जन्म देने वाली है। तो लोगों का एक मर्तबा फिर तांता बन चुका था। हर रोज वो आते और आकर उस शख्स से पूछते ये बकरी कब बच्चे देगी, और वो शख्स हैरान था। कहने लगा ये चक्कर क्या है, तुम लोग अपने घर तामीर करो, अपने घरों पर गौर करो, अब छोड़ दो मेरी बकरी की जान, ये हामिला है, या अल्लाह ताला का हुक्म हुआ बच्चा दे देगी। मगर लोग कहने लगे तुम जितना मर्जी अपनी बकरी को हमसे छुपा कर रख लो, लेकिन ये मत भूलो कि पूरा मिस्र तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। तुम चाहकर भी हमसे अपनी बकरी नहीं छुपा पाओगे। हम हर हाल में बकरी को देखना चाहते हैं। लोगों की डिठाई देखकर वो शख्स घबरा चुका था। आखिर ये लोग चाहते क्या थे। चंद रोज बाद वो वक्त भी आ गया। जैसे ही बकरी बच्चा पैदा करने लगी तो फौरन वो सभी लोगों को इत्तला कर दी गई। जब बकरी को शदीद तकलीफ महसूस हुई तो वो बोलने लगी। उसकी आवाज की तब्दीली सुनना थी कि लोग फौरन बाहर दीवारों के साथ कान लगाकर बैठ गए। लोगों तक आवाज पहुंच गई। फौरन पूरे मोहल्ले में और फिर से आसपास के इलाके में ये बात फैला दी गई, ये बकरी बच्चा पैदा करने वाली है जो कि इंसानी शक्ल का होगा। लोग भागकर वहाँ पर आने लगे। लोगों को यूं घर में आने पर वो बूढ़ा शख्स घबरा चुका था। धक्के मार मार कर लोगों को घर से निकालने लगा। ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये मेरा घर है, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन लोग उसके घर पर दावा बोल चुके थे। वो बकरी सामने सहन में बंधी हुई थी। वो औरत जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी, वो अपना मुंह छुपाकर लोगों को ललकारने लगी कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। सुल्तान और सिपाही एक जानिब खड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मंसूबा कामयाब हो चुका था। कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत गैर होने लगी। सब लोग ये देखने को बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़े और वो अगले चंद रोज में माला माल होने वाला है। मगर इससे पहले बकरी किसी बच्चे को जन्म देती, वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इस कदर गुस्से में आ गई, अपने पर्दे को उतार कर फेंक दिया। वो सबके सामने आ चुकी थी। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया। आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। चीख चीख कर इंतहाई भारी आवाज में कह रही थी, निकल जाओ मेरे घर से, मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर दोगे, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी। एक एक का चेहरा मैंने देख लिया है। हर कोई अपनी आई से पहले कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लेकिन सभी हैरान थे, इस कदर शरीफ औरत जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो एकदम कैसे सारे पर्दे उतार कर फेंक सकती है। लोग तमाशा देख रहे थे, जबकि बादशाह सलामत जानते थे कुछ ऐसा ही होगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं तबीब हूँ, मैं जानवरों की मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूँ। कितने ही बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैं मदद कर चुका हूँ। हर कोई उसे आगे भेजने लगा और सिपाही आगे बढ़कर बकरी के पास मौजूद था। बकरी को ऐसी चीज सुंघाई कि कुछ ही देर के बाद उसने जो चीज पैदा की सबकी देखकर चीखें निकल चुकी थी, तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके पेट से कोई बच्चा बरामद नहीं हुआ था, बल्कि बेतहाशा तावीज और डोरियां उसके वजूद से बाहर आकर गिरी थी। ये देखकर वहाँ पर लोग खौफ से कांप उठे थे, चिल्लाने लगे, दूर भागने लगे, कहने लगे, ये था इस बकरी के पेट में इंसानी बच्चा, ये तो तावीज निकल रहे हैं। वो बकरी मर चुकी थी और वो औरत और वो बूढ़ा शख्स चीख चीख कर रो रहे थे कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। उस वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वहाँ पर 2 सिपाही खड़े हुए और हर कोई रास्ता छोड़ने लगा। ये देखकर लोगों की आंखें मजीद खुल चुकी थी। उनके बीच ही मौजूद शख्स जिसे वो कितने रोज से अपने बीच में देख रहे थे, वही बादशाह थे। हर कोई घबरा कर सर झुकाने लगा, जबकि सुल्तान उस शख्स और उस औरत के पास आए और कहने लगे, हकीकत तुम लोग खुद अपने मुंह से बताओगे या तुम लोगों का अभी सर कलम कर दिया जाए। वो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे, बादशाह के कदमों में गिर गए और फिर वो बूढ़ा शख्स रोते हुए कहने लगा, सुल्तान, मेरी बीवी काला जादू करती है, बज़ाहिर किसी के सामने नहीं आती, क्योंकि मैंने इसे पहले ही कह रखा था, मैं एक शरीफ और इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक हूँ। लोग मुझ पर ताने कसेंगे कि तुम्हारी बीवी क्या औलाद की खातिर काला जादू करती है। इसलिए मेरी बीवी घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती। उसने अलग मकान में अपना ठिकाना बना रखा था, जहाँ पर औरतें सफली अमलियात करवाने के लिए आया करती थी। काला जादू करवा के कितने घर बर्बाद कर चुकी थी। बहरहाल ये बकरी हमने इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपनी अमलियात के लिए इस्तेमाल करती। इसके पेट में कितने ही लोगों की निशानियां तावीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए तो कभी पानी में तावीज़ों का घोल बनाकर। यूं जब इसका पेट तावीज़ों से भरने लगा तो पेट फूलने लगा। मेरी बीवी सफली अमलियात करके एक बहुत ही बड़े जिन को काबू करना चाहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। कहत साली और बारिश की वजह से हमारे जानवर भी जा चुके थे और हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था।
जब हम लोग भूख से मरने लगे तो दोनों ने मंसूबा बनाया और एक गुलाम खरीदा जो इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में रह रहा था। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जहाँ से सिर्फ उसे हवा जा सके। वही शख्स 5 वक्त की अजान दिया करता था। अजान उस बकरी के पेट से आती सुनाई देती थी। हमने मुसलसल 5 माह तक ऐसा ही करना था। यूं हम दोनों मियाँ बीवी पेट भरकर खाना भी खा रहे थे। लेकिन अब हमारा मकसद पूरा हो चुका था। आज रात इस बकरी की बलि चढ़ाकर हम सब कुछ हासिल कर लेते, यानी हमें औलादे नरीना मिलने वाली थी। लेकिन मौका पर सब कुछ खत्म हो गया। हकीकत सुनकर लोग अपनी समातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हर कोई यही कहने लगा, मारो मारो, इनका कत्ल कर दिया जाए। इन्होंने हम सब के साथ धोखा किया, हमारे जज्बात के साथ खेला और सबसे बढ़कर ये इन्होंने खुदा को नाराज किया। ये अल्लाह ताला का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की खातिर। हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई। बादशाह ने वजीरों को हुक्म देकर इन दोनों को घसीट कर तहखाने में बंद कर दिया। इन लोगों का इबरतनाक अंजाम देखकर दरबारी कांप कर रह चुके थे, लेकिन उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों को मजीद शिर्क जैसे कबीरा गुनाह से बचा लिया।